Students, today we are going to study the digestive system of Hardmania. यानी आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हार्डमानिया की डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। हार्डमानिया के पाचन तंत्र में दो मेजर भाग होते हैं, वो हैं एलिमेंट्री कनाल और पाचन ग्रंथियाँ। यानी द एलिमेंट्री कनाल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया consists of the alimentary canal and the digestive glands. The first part, that is the alimentary canal. What are the main parts seen in the case of the alimentary canal? Alimentary canal or the digestive tract is coiled one. This is the coiled alimentary canal or the digestive tract. It is complete, पूर्ण होता है, complete, beginning at the mouth. Here it is the mouth, the number one is the mouth, and terminating at the anus. Here it is the anus. And it starts at the mouth and ends at the anus portion. Okay. Now the first portion of the alimentary canal, which is known as the mouth, or it is known as the branchial aperture. देखिए आप लोग रेड कलर के जो पेन से लिखा हुआ है, इंक से लिखा हुआ है, यानी ब्रैंकियल अपर्चर ऊपर भी है, यानी ब्रैंकियल माउथ यानी ब्रैंकियल अपर्चर एंड the mouth or branchial apertures opens on the top of the branchial siphon. This is the branchial siphon. Here it is the branchial siphon. और इसी branchial siphon के सबके ऊपरी हिस्से में mouth या branchial aperture होता है, और it forms the anterior end of the body, यानी शरीर के सबसे अग्र पोर्शन बनता है. It is bordered by, यानी ये देखिए अब it is bordered by 4 lobes formed by the tusk. tusk से बना हुआ 4 पालियों से घेरे हुए रहते हैं. And the second portion, which is known as the buccal cavity, यानी second portion, here it is the buccal cavity, and यहाँ पर भी है 2 नंबर पे लिखा हुआ है, यानी buccal cavity. Buccal cavity जो है that is short, narrow and laterally compressed cavity of the branchial siphon. ये पार्श्व संपीड़ित एवं छोटे एवं संकरित भाग होता है, जिसको हम स्टोमोडियम और बक्कल कैविटी भी कहते हैं. ए स्ट्रॉन्ग ब्रैंकियल स्फिंक्टर, देखिए दिस इज द ब्रैंकियल स्फिंक्टर. ए स्ट्रॉन्ग ब्रैंकियल स्फिंक्टर प्रेजेंट नियर द बेस ऑफ साइफन रेगुलेट्स द ओपनिंग. यानी ब्रैंकियल जो स्फिंक्टर है वो इसके ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं. The base, now the base of the base of the branchial siphon, you can see base of the siphon is provided with a number of small tentacles, small and delicate tentacles. They are known as the branchial tentacles. यहाँ पर दिखाई देंगे आपको ये छोटे छोटे, यानी बेस यानी साइफन के ठीक बेस या आधारीय भागों पर अनेकों सिकल आकार के छोटे छोटे डेलिकेट स्पर्शक या टेंटाकल्स पाए जाते हैं, जिसको ब्रैंकियल टेंटाकल्स कहते हैं. और ये ब्रैंकियल टेंटाकल्स ही टोटल जो है अबाउट 64 ब्रैंकियल tentacles are there, and it can be divided into 4 groups. That means 8 large sized having the size of 5 mm, and 8 medium having the size of 2.5 mm, and 16 small branchial tentacles and having 1.5 mm in size, and 32 very small tentacles, and their size is about 0.5 mm. यानी ब्रैंकियल टेंटकल्स जो हैं वो टोटल 64 है, और ये हम 4 ग्रुपों में बांट सकते हैं.
8 बड़े, 8 मध्यम वर्ग के और 16 छोटे एवं 32 बहुत ही छोटे टेंटाकल्स। और उसकी साइज़ है 8 जो बड़े हैं वो है 5 mm की, 8 मध्यम साइज़ के हैं उसके 2.5 mm की, और स्मॉल या छोटे हैं 16 उसकी साइज़ है 1.5 mm की, 32 जो है वेरी स्मॉल है उसकी साइज़ है 0.5 mm की। वो कहाँ स्थित होते हैं, यानी ब्रैंकियल साइफन या बक्कल कैविटी के आधारीय भाग पर। ये देखिए यहाँ पर ब्रैंकियल साइफन की या बक्कल कैविटी की आधारीय भाग पर उपस्थित होते हैं। ओके, और इसकी शेप क्या है, सिकल शेप्ड ब्रैंकियल टेंटाकल, सिकल शेप। और ये ब्रैंकियल टेंटाकल्स जो है कि इसमें ब्रैंकियल टेंटाकल्स food particles is a sort of, it is a sort of strainer. It acts as the strainer or the filter which prevents the entry of larger food particles into the pharynx. Pharynx में बड़े बड़े भोजन के कणों को आने से या जाने से ये रोकते हैं। ओके, now next portion, that is the pharynx. You see, that is the pharyngeal portion, and pharyngeal portion can be divided into two, that is the pre-branchial zone and the branchial sac. and here it is the pre-branchial zone. pre-branchial यानी branchial कोश को pharynx या ग्रसनी का 2 भागों में बांटा जा सकता है। और ये 2 भागों में पहला जो भाग होता है उसको प्री ब्रैंकियल जोन कहते हैं। दिस इज द प्री ब्रैंकियल जोन, प्री ब्रैंकियल जोन। और दूसरा जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं दैट इज द ब्रैंकियल सैक। दिस इज द ब्रैंकियल सैक। तो प्री ब्रैंकियल जोन देखें, प्री ब्रैंकियल जोन, प्री ब्रैंकियल जोन। प्री ब्रैंकियल जोन में क्या क्या संरचनाएं होती हैं वो देखें। इट इज़ अ स्मॉलर प्री ब्रैंकियल जोन जो है, इट इज़ अ स्मॉलर एंटीरियर रीजन हैविंग स्मूथ वॉल्स विदाउट फोल्ड, सीलिया, स्टिग्माटा और गिल स्लिट्स। ये छोटा सा पोर्शन होता है फारिंग्स के या ग्रसनी के अग्रभाग भी बनाते हैं और छोटा सा पोर्शन होता है। इनमें ना ही कि फोल्ड विदाउट फोल्ड होता है, ना सीलिया, ना स्टिग्माटा या फिर गिल स्लिट्स होता है। और इट इज़ demarcated फ्रॉम द ब्रैंकियल सैक बाय 2 सर्कुलर थिन पैरेलल एंड सीलिएटेड रिच। ये आगे के जो पोर्शन है ब्रैंकियल सैक से सेपरेट करते हैं दो सर्कुलर वृत्ताकार पतले एवं समानांतर पाए जाने वाले 2 सीलिएटेड रिजेस द्वारा इसको पृथक की जाती हैं और इनको पेरीफैरिंजल बैंड्स कहते हैं। दिस इज द पेरीफैरिंजल बैंड्स। ओके, पेरीफैरिंजल बैंड्स कहते हैं। और ये पेरीफैरिंजल बैंड्स 2 या 2 होते हैं। इसको कहते हैं अग्रभाग का है पोस्टीरियर पेरीफैरिंजल बैंड्स एंड पश्चिम भाग का पोस्टीरियर पेरीफैरिंजल बैंड और अग्रभाग का होता है एंटीरियर पेरीफैरिंजल बैंड। इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं उसको कहते हैं पेरीफैरिंजल ग्रूव। देखिए, पेरीफैरिंजल ग्रूव यानी 2 हेरिटीज 2 पेरीफैरिंजल परिग्रसनी पट्टियाँ अग्र एवं पश्च, इन दोनों के बीच में जो ग्रूव या खांच पाए जाते हैं उसको कहते हैं पेरीफैरिंजल ग्रूव। ओके, पेरीफैरिंजल। तो 2 बैंड्स bears larger cilia while the groove has smaller cilia। दोनों बैंड्स में पट्टियों में बड़े सीलिया पाए जाते हैं बट ग्रूव के अंदर छोटे सीलिया पाए जाते हैं। और एंटीरियर पेरीफैरिंजल बैंड इज ए कंप्लीट रिंग। जो अग्र भाग के पेरीफैरिंजल बैंड जो हैं वो कंप्लीट रिंग फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग and a complete ring and mid dorsally in front of it lies a solen dorsal tubercle। इसके मध्य पृष्ठीय भाग पर एक फूली हुई डोर्सल ट्यूबरकल पाए जाते हैं और पश्च पेरीफैरिंजल बैंड इंटरप्टेड होते हैं, बीच में से टूटी हुई होती हैं और मिड डोर्सल भाग में एक डोर्सल लैमिना पाया जाता है। दिस इज अ लोकेशन
पोजीशन ऑफ डोर्सल लैमिना, मध्य पृष्ठीय भाग की ओर एक पृष्ठ लैमिना पाए जाते हैं एवं मध्य अधरीय भाग के ओर जो है एंडोस्टाइल, दिस इज द पोजीशन ऑफ द एंडोस्टाइल, एंडोस्टाइल पाए जाते हैं। यानी जो फैरिंग्स है, फैरिंग्स की अग्र भाग की ओर जो भाग होता है उसको कहते हैं प्री ब्रैंकियल जोन। इस प्री ब्रैंकियल जोन में दो सर्कुलर थिन एवं पैरेलल सिलिएटेड रिजेस होती हैं, इसको परिग्रसनी पट्टियाँ कहती है। परिग्रसनी पट्टियाँ अग्रभाग के एंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड कहते हैं और पश्च भाग के पोस्टीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड कहते हैं। इन दोनों के बीच के जो स्थान है, खाली स्थान, जिसको कहते हैं पेरिफेरेंजियल ग्रूव। ओके, और जो अग्र पेरिफेरेंजियल बैंड जो है वो कंप्लीट रिंग होती है, बट पश्च जो पेरिफेरेंजियल बैंड होती हैं वो इनकम्प्लीट होती है। जो आगे जो एंटीरियर पेरिफेरेंजियल बैंड के मिड डोर्सल पोर्शन में यानी मध्य पृष्ठीय भाग की ओर डोर्सल ट्यूबरकुल पाए जाते हैं, पृष्ठगुलिका पाए जाते हैं, और पश्च पेरिफेरेंजियल बैंड टूटे हुए होते हैं बीच बीच में, और उसके मध्य पृष्ठीय भाग की ओर डोर्सल लैमिना की लोकेशन होता है और मध्य अधरीय भाग की ओर एंडोस्टाइल पाया जाता है। ओके, नाउ the next portion which is known as the branchial sac. Branchial, this is the branchial sac. Okay, पेरिफेरेंजियल बैंड से लेकर पश्च भाग ईसोफेजियल एरिया तक फैले हुए एक सैक के समान या बास्केट के समान संरचना है जो कि ब्रैंकियल सैक, एंड it is the larger posterior region of the pharynx. It is also known as the branchial basket. ये branchial basket के नाम से भी जाना जाता है और its walls are perforated by a number of openings which communicates with the atrial cavity. इसकी दीवारों में आपको दिखाई देंगे अनेकों छोटे छोटे ओपनिंग्स पाए जाते हैं। इन ओपनिंग्स को गिल स्लिट्स या स्टिग्माटा कहते हैं और इसी के द्वारा ये मेंटल कैविटी से जुड़ जाते हैं। ओके, ईच साइड ऑफ द ब्रैंकियल sac bears about 2 lakh stigmata arranged in several transverse rows. यानी एक साइड में जो ब्रैंकियल कोश जो है, ब्रैंकियल सैक जो है, वो करीब 2 लाख स्टिग्माटा के अनेकों अनुप्रस्थ पंक्तियों में उपस्थित होते हैं। ओके, और इस स्टिग्माटा एपिथेलियम लाइनिंग द स्टिग्माटा बियर्स लॉन्ग सीलिया, इन्हीं स्टिग्माटा की एपिथेलियम में अनेकों सीलिया, लंबे सीलिया पाए जाते हैं। इसको लैटरल सीलिया भी पाए जाते हैं। Pharyngeal wall consists of network of broad longitudinal and transverse bars. ये pharyngeal wall या भित्तियों में अनेकों जालक के रूप में लॉन्जिट्यूडनल एवं यानी लंबवत एवं अनुप्रस्थीय बार्स या बार्स पाए जाते हैं और इसको स्टिग्मैटिक एरियाज या स्टिग्मैटिक एरियाज कहते हैं और हर एक स्टिग्मैटिक एरिया में करीब 5 से 6 स्टिग्माटा भी पाए जाते हैं। नाउ सी ब्रैंकियल कोश, सी इनमें नेक्स्ट पोर्शन यानी ब्रैंकियल सैक के अंदर स्टिग्माटा पाए जाते हैं। स्टिग्माटा आपको समझा दिया। स्टिग्माटा के अलावा जो नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज़ द ट्रैबिकुले। ट्रैबिकुले इसमें आपको डायग्राम में दिखाई नहीं देगा और ट्रैबिकुला है क्या है वे मैं आपको बता देती हूँ। यानी द आउटर वॉल ऑफ ब्रैंकियल सैक इज कनेक्टेड टू मैंडल बाय सेवरल होलो स्ट्रैंड्स। यानी ब्रैंकियल कोश की बाहरी दीवार मैंडल से जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए जो सब अनेकों स्ट्रैंड्स, होलो स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, इसको ट्रैबिकुले कहते हैं। यानी द ट्रैबिकुले कनेक्ट्स द आउटर वॉल ऑफ ब्रैंकियल सैक एंड ऑल्सो द मैंडल। यानी मैंडल और ब्रैंकियल कोश की बाहर की दीवारों को जोड़ने के लिए जो होलो स्ट्रैंड्स होते हैं जिसको हम ट्रैबिकुले कहते हैं। ओके, ट्रैबिकुले यहाँ लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन that is the dorsal lamina. Dorsal lamina
इट्स ए थिन, इनका लोकेशन यह है, दिस इज द लोकेशन डोर्सल लैमिना, dorsal lamina, that is the location of the या position of the dorsal lamina. यहाँ लिखा है 4-3 यानी 4 का थर्ड पोर्शन, that is the dorsal lamina. This is also known as the hyperpharyngeal band, hyperpharyngeal band. और ये hyperpharyngeal band क्या है मैं आपको बताती हूँ. ये thin flap or fold 1 to 1.5 centimeter long is suspended from the short mid-dorsal border of the roof of the branchial sac. ब्रांकियल कोश की छत से यानी रूफ से करीब 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबे जो संरचना है लटके हुए पाए जाते हैं, इसको हम हाइपरफैरिंजियल बैंड और डोर्सल लैमिना कहते हैं. और इसके डायग्राम आगे मैं दिखा दूंगी आपको, डोर्सल लैमिना और हाइपरफैरिंजियल बैंड. नाउ द एंडोस्टाइल, दिस इज द लोकेशन ऑफ द एंडोस्टाइल. ये कहाँ पाया जाता है एंडोस्टाइल, यानी फैरिंग्स की वेंट्रल साइड की ओर, जो वेंट्रल साइड की ओर शैलो संरचना, ग्रूव लाइक संरचना जो पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं दी एंडोस्टाइल. शैलो लॉन्जिट्यूडनल मिड वेंट्रल ग्रूव, यानी छिछले लंबवत मध्य आधरीय जो खांच है, इसको कहते हैं एंडोस्टाइल. और ये अग्र भाग में ये पेरीफेरेंजियल ग्रूव से जुड़ते हैं और पश्च भाग की ओर ये पोस्टीरियरली ग्रूव टर्मिनेट्स एट द ईसोफेजियल एरिया. ओके, यानी पश्च भाग की ओर ये ईसोफेजियल एरिया से जुड़ते हैं और अग्र भाग की ओर ये पेरीफेरेंजियल ग्रूव से जुड़ते हैं एंडोस्टाइल. Now the next portion, that is the esophageal area. Here it is the esophageal area. You see, this is the esophageal area or the esophagus. The branchial sac posteriorly leads to the esophagus. ये branchial कोश जो हैं वो पश्च भाग की ओर ईसोफेगस से जुड़ते हैं. वो एक छोटा वक्रित पोर्शन, थिक वॉल्ड पोर्शन होता है. its lumen is produced to 4 longitudinal ciliated grooves for the passage of the food. इसके जो लूमेन है वो कैविटी जो है अंदर की ओर 4 सीलिएटर ग्रूव्स में डिवाइड होती हैं for the which helps for the passage of the food. Now next one, that is the stomach. The stomach, it is the wider region. This is the stomach region. Here it is the stomach. Stomach के दोनों भाग में लिवर के 2 भाग होते हैं, यानी राइट लिवर लोब एंड लेफ्ट लिवर लोब. Wider than the stomach is wider than the esophagus. Okay, it is also thin walled. ये thin walled होती हैं, यानी thin walled है. और अगला जो पोर्शन है that is the intestine. Here it is the intestine. Intestine जो है stomach that leads to the intestine. The intestine is a U-shaped structure, shaped tube having the descending and also the ascending limb. 2 इसमें लिम्ब होते हैं, एक डिसेंडिंग और दूसरा असेंडिंग लिम्ब. और अगला जो पोर्शन है that is the rectum. Okay, rectum portion यानी terminal part of the intestine that leads into short narrow tube. यानी ये इंटेस्टाइन के जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो एक छोटे एवं संकरी ट्यूब की ओर ले जाते हैं, उसको हम रेक्टम कहते हैं. और ये रेक्टम इट इज़ इंटरनली लाइंड बाय द सीलिया. आंतरिक भाग से ये सीलिया से आस्तरित रहती हैं. नाउ दिस the rectum, now it opens to the cloaca or the atrium through the anus. Here it is the atrium or the anus, cloaca, or the atrial cavity or cloaca then leads into the atrial siphon. ये यहाँ पर atrial siphon की ओर एक cloaca खुलते हैं. This is all about the
अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हाइडमानिया, कि अब इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे एंडोस्टाइल हैं, डोर्सल लैमिना है, टेंटाकल्स है, ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। और ये मुझे लगता है ये समझ में आ गए होंगे आपको। इसके साथ ये बंद करें, यहीं मैं